Okay, so we'll be starting with current electricity. The name of the topic today is, this is important, electrical measuring instruments. Measuring instruments, in theory we have done like potentiometer, Wheatstone's meter bridge. Now today I'll be discussing other types of measuring instruments. Please pay attention. There are two types. First one is deflection type meters, and second one is standard experimental type. If you want, you all can write this also. So in deflection type, there are three types of meters. One is galvanometer, which we are going to discuss. Second one is ammeter, and third one is voltmeter. Okay. Standard experimental types, we have done it in our 12th standard portion of HSC. One is potentiometer, Wheatstone's meter bridge, similar comes with Kelvin's method, and then it is Wheatstone's network also. We'll write it Kelvin's method also. Okay. So हम लोग अभी बात करेंगे गैल्वानोमीटर की. दिस इज ओवर, दिस फर्स्ट पेज इज ओवर, पेज नंबर 1 आई हैव डन इज देयर. आई एम गोइंग टू पेज नंबर 2, नेक्स्ट स्लाइड. प्लीज बी विथ मी. ये चीज अभी बहुत दिनों के बाद वी आर स्टार्टिंग अगेन, सो आई एम गोइंग स्लो, देन अगेन आई विल पिक अप स्पीड फ्रॉम फ्राइडे. सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गैल्वानोमीटर से. ओके, फर्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट्स याद रखना. इट मेजर्स स्मॉल करंट. It has two standard characteristics. One is full scale deflection current. That is IG. And second one is galvanometer resistance. That is G. Okay, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, सपोज देयर इज अ galvanometer, इसका रेजिस्टेंस इज G. Make it पॉइंटर यहां पर है, सपोज दिस इज अ 0 पॉइंटर. ओके, एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू. इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस है G. सपोज इसके अंदर आई पास करंट IG. अच्छा, व्हाट इज IG कॉल्ड एज? IG को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का क्या मतलब है कि इफ दिस IG करंट इज पास्ड इनसाइड द गैल्वानोमीटर, पॉइंटर विल शो फुल स्केल. हेलो, यस और नो? इसको बोलते हैं IG. Yes, sir. And can you tell me what is the potential drop across this galvanometer? The potential drop is VG, which will be IG into G.
I all there with me, man. Easy है तो है. V is IR, I is IG, and G is that to VG. VG को बोलते हैं full scale deflection voltage. Full scale deflection voltage. Full scale deflection voltage. याद रखना. अच्छा, by the way, you are going to do galvanometer also in the chapter called as magnetic effect of electric current in detail. मैं सिर्फ ये सुपरफिशियल आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस. इसके अंदर क्या होता है, गैल्वानोमीटर के अंदर क्या होता है और कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो सब आपको मैग्नेटिज्म के चैप्टर में बताया जाएगा. राइट नाउ वी आर जस्ट डीलिंग विद द सरफेस ऑफ गैल्वानोमीटर, दैट इज this much. Okay, so is this fine? The second slide is also okay. I am going to go to the third slide. Okay, that is ammeter. Now pay attention. This is important again. Ammeter. Fine. Pay attention over here. First point, it is used to measure current, or I can say large current in the electrical circuit. B point, it is connected, अभी ध्यान से, it is connected in series with the resistor, with the circuit, I can say. इसको मेजर क्या करना है, इसको मेजर करंट करना है. तो सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, रेजिस्टेंस आर, बैटरी वोल्टेज ही, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर. एमीटर बेटा कैसे कनेक्ट करेंगे, एमीटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, ताकि ये जो करंट है ना आए, ये मेजर कर पाए, और ये जो मेजर करेगा तो इसका पॉइंटर घूम जाएगा और पॉइंटर डिफ्लेक्शन बताएगा. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? So it is always connected in series with the circuit, whose I is to be measured, whose current is to be measured. एकदम easy सिखा रहा हूँ मैं आज. Okay, once the synopsis are over, we can just do the sums. Ideal ammeter, ध्यान से, आइडियल एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है. Why? Because अब ध्यान से सुनो मेरी बात, because it should not alter the current ना. बाबा हेलो, देखो मैं आपको एक बात सिखाता हूँ. देखो, कैन यू टेल मी इस लूप में करंट कितना है? चलो मैन, कोई तो बता सकता है? प्लीज टेल मी. E upon R plus R. Perfect man. The current is E upon बड़ो R plus छोटो R. This is when it is an ideal ammeter. आइडियल एमीटर मतलब जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है. बट प्रैक्टिकल एमीटर में क्या होगा? इसके पास रेजिस्टेंस होगा, लेट इट बी आर ए. नाउ व्हाट विल बी द करंट? कैन यू टेल मी? हेलो. R plus R plus R. Is the current lesser than I or more than I? Is the I dash lesser than I or more than I? Lesser. हाँ देखो ना, ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना, तो I dash is lesser than I. So I can say the practical ammeter is going to vary the current. Practical ammeter should be varying the current. That means therefore ideal ammeter का resistance कितना होना चाहिए? 0, because it should not alter the current.
मगर हमारे पास जिंदगी में आइडियल एमीटर तो है ही नहीं, बिकॉज दैट इज आइडियल इन थॉट्स. सो आई कैन मेक अनदर ऑप्शन दैट प्रैक्टिकल एमीटर, प्रैक्टिकल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, और आई कैन से इट शुड बी नियरली जीरो. हेलो, प्रैक्टिकल एमीटर जीरो होना चाहिए, बट जीरो तो पॉसिबल नहीं है. दैट मींस इट शुड बी नियरली जीरो, और आई कैन से प्रैक्टिकल एमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी, और सर क्या भाई, Small. small, so that it should not alter the current more. भाई आइडियली तो जीरो होना है, आइडियली तो जीरो होना है, बट जीरो तो पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब इट शुड बी टेंडिंग अप टू जीरो. टेंडिंग अप टू जीरो मतलब इट शुड बी वेरी 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 स्मॉल. So that means resistance of the ammeter should be very 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 small. ये सब ध्यान रखना है बेटा. So practical ammeter का रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉल. अभी एमीटर बनाते कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ. ये पेज समझ गया सबको? हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस पेज, दिस स्लाइड? ओके फाइन. सो दिस Yes. एमीटर इज डन. इसके बाद में हम लोग बनाते हैं एमीटर को कैसे बनाएंगे. सो टू मेक एन एमीटर, कैन आई से कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर. First point, resistance of ammeter, practical ammeter should be very much, क्या होना चाहिए? स्मॉल. स्मॉल होना चाहिए. बराबर है. ये हमारा पंच लाइन है. बिकॉज इट शुड नॉट ऑल्टर द करंट. अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगा तो करंट और गिर जाएगा. ये बेसिस पर हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एमीटर में. अभी ध्यान देना सब लोग, मेरी बात सुनना, पे अटेंशन टू मी. ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है. अच्छा, गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है हमको? भाई किस में बदलना है? Ammeter. एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? भाई हु इज दिस करण कम मेहरा? होगा. करण मेहरा, हेलो. करण मेहरा कौन है? करण मेहरा, आर यू देयर? He left. Some new guy was there, I don't know, with the mask. Okay, I should lock the meeting now. Okay, fine. नहीं, आप लोग इसको भी lock meeting. Listen over, pay attention. तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो उसके लिए और एक रेजिस्टेंस आई विल कनेक्ट इन सीरीज, और एक रेजिस्टेंस आई विल कनेक्ट इन पैरेलल. हेलो, टेल मी. Parallel. पैरेलल में लगाएंगे. मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमको कम करके एमीटर बनाना है. एमीटर का रेजिस्टेंस कम है, तो कम के लिए we'll connect another resistance in parallel. So another resistance in parallel is connected. इस रेजिस्टेंस का स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं बेटा इसको? शंट रेजिस्टेंस. शंट का मतलब हमने आपको बताया था पैरेलल होता है, पहले भी आपको बताया था. सो देखो इधर मेरी बात सुनो, क्या होता है. अच्छा, ये डब्बा क्या बन गया? व्हाट इज दिस डब्बा होल कॉल्ड एज? नाउ दिस होल डब्बा इज कॉल्ड एज एमीटर. ओके, दिस होल डब्बा is what sir? This whole dabba is ammeter. Yes or no sir? Hello. Now this whole concept, this whole thing is connected in series with the circuit. It is connected in series with the circuit. Videos फिर से आपके ऑफ हो गए बेटा, प्लीज ऑन करो. That okay, you can understand.
नाउ क्या हो रहा है, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सपोज यहां से करंट जा रहा है आई, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां से करंट जा रहा है आई, suppose his full scale deflection current, how much he'll take, how much he'll take Ig, because he cannot go beyond Ig. If he goes beyond Ig, it will be damaged. That is full scale deflection current of the galvanometer ना? तो सपोज ये एक्सटर्नल सर्किट से आ रहा था आई, उसमें से गैल्वानोमीटर मैक्सिमम मैक्सिमम कितना ले पाएगा Ig, तो बाकी का करंट किधर डाइवर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग, और दोनों मिलकर फिर से यहाँ से आए बाहर आएगा। तो गैल्वानोमीटर मैक्सिमम कैन टेक आईजी ओनली, आईजी से कम भी ले सकता है बट आईजी मैक्सिमम ले सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम करंट्स ओवर हियर। अच्छा, कैन आई से जी और एस किस में है, सीरीज में क्या पैरेलल में? जी एंड एस पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम होता है दोनों के बीच में? पैरेलल में क्या सेम होता है? Potential difference. Potential difference. So can I say potential difference across G and potential difference across S is the same? What is the potential difference across G? The potential difference across G is Ig into G. And the potential difference across S will become I minus Ig into S. Are you getting it ना? IR दोनों का IR respectively, ये important है। तो already shunt का value equal to GIG upon I minus Ig. Yes or no? तो ये शंट का वैल्यू अगर आप लगाएंगे तो आप करंट आई मेजर कर सकते हो, दिस आई। कैन आई से दिस galvanometer is constructed into an ammeter to measure current I, to measure current I. Okay, can I say this shunt has to be connected in parallel with galvanometer to make it into an ammeter for measuring how much current? ammeter कितना measure कर रहा है current? maximum current कितना है ammeter का? I. This is his maximum value, हाँ। मतलब इससे ज्यादा करंट जाएगा तो एमीटर खुद डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज हो जाएगा? बिकॉज आई ज्यादा जाएगा तो आईजी ज्यादा हो जाएगा, और अगर आईजी ज्यादा हो गया तो गैल्वानोमीटर जल जाएगा ना, बिकॉज गैल्वानोमीटर कैन मैक्सिमम टेक आईजी ओनली ना। हेलो, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग मैन? Yes, sir. Because if I becomes more, IG will become more, and if IG becomes more, G will get damaged. This formula is very 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 important. S is GIG upon I minus IG. S is GIG upon I minus IG. अच्छा, can you tell me what is the resistance of the ammeter? दोनों पैरेलल में है ना, तो can I say R1 R2 upon R1 plus R will become GS upon G plus S? Hello, this is resistance of ammeter. This is resistance of ammeter. This is resistance of ammeter. हाँ, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आई विल प्रूव इट। ये दोनों फॉर्मूलास तो आपको याद ही रखना है, इसमें कोई। अच्छा, कैन आई फाइंड आईजी बाय करंट डिवाइडर फॉर्मूला? किसको आता है क्या? अगर मैं करंट डिवाइडर फॉर्मूला लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा? कम ऑन मैन, हेल्प योरसेल्फ प्लीज। आईजी का करंट डिवाइडर फॉर्मूला क्या रहेगा? हेलो, आप सब भूल जाते हो यार। आई इंटू
दूसरा वालों, हु इज द दूसरा वालों? S. हेलो, याद है ना अपॉन S प्लस G? Yes or no? Yes, sir. अच्छा, what will be IS then? What is the current through the shunt then? रहेगा यार I into G upon G plus S. Getting it? Current divider formula. समझ में आ रहा है यार? समझ में आ रहा है कि नहीं? हितांश, are you getting it? Yes, sir. Dhruv Kothari. Yes, sir. Adit, are you there? Okay. Jaideep. Simone. Yes, sir. Divya. Nilansh. Yes, sir. Okay, please. Okay, I need to see in front. Jinay, are you understanding बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर फ्रॉम गैल्वानोमीटर. ये आता है एग्जाम में, इसका ध्यान रखना है सब लोगों को, इंपॉर्टेंट है. आदित्य, डिड यू गेट बेटा? आदित्य? Yes, sir. Fine. So this was construction of an ammeter from galvanometer. And how is this ammeter connected? This whole dabba which is there na red color ka is connected in series with the circuit. मतलब ये आ रहा है, ये पूरा डब्बा अंदर है, ऐसा डब्बा, ये एमीटर का डब्बा. इसमें क्या होगा? गैल्वानोमीटर होगा एंड इसके अंदर शंट होगा. Did you understand? Yes, sir. और ये आई मेजर करेगा. अच्छा चलो मुझे बताओ आई कितना रहेगा अभी? आई प्रैक्टिकली कितना रहेगा? जो पीछे आपने गौतम ने शायद बताया था. व्हाट वाज आई बेटा? अरे बोलो यार. ई अपॉन R plus R. आर प्लस छोटो आर प्लस आर ए. बट आर ए को कैसे लिख सकता हूँ? G into S upon G plus S. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? ये प्रैक्टिकल करंट का वैल्यू है, ये प्रैक्टिकल करंट का वैल्यू है जो मेजर किया जाता है. तो दिस इज आर ए ना, दिस होल थिंग इज आर ए ना. क्या हो रहा है यार? हेलो, am I able to explain you all? Yes sir, please. Obviously yes. Okay, ठीक है, चलो. So construction of an ammeter from voltmeter, galvanometer. अच्छा, ये चीज फिर से पढ़ाई जाएगी आपको थियरी में. Since the part is coming over here in DC Pandey, actually it is a part of magnetic effect. आप बोलेगे सर ये चीज तो नया है, हमने वीडियोस में देखा ही नहीं है रिकॉर्डेड में. आपको मिलेगा फिर से ये चीज रिकॉर्डेड में, बट विल कम इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ओवर देयर. सिंस इट इज देयर इन डीसी पांडे, आई एम डूइंग इट माई सेल्फ. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ आई एम डूइंग वोल्टमीटर्स. क्या मेजर करता है वोल्टमीटर? मेजर्स potential difference across circuit. Okay, always remember it is connected in parallel with circuit. कैसे मैं आपको बताता हूं, देखो. इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बना रहा हूं मैं. ओके, आई एम नॉट मेकिंग internal resistance. This voltmeter will always measure potential difference over here. So it is connected in parallel with the circuitry. क्या measure करेगा ये? ये measure करेगा potential difference across this बड़ो R. What is the potential difference across this बड़ो R? IR ना, V is IR ना बच्चा. हेलो यार, V is equal to what? I into R. ये voltmeter measure करेगा. Getting it? हेलो, समझा ना?
It is connected in parallel with the circuit. It measures potential difference across the circuit. But एक दिक्कत ये आती है, एक प्रॉब्लम ये आती है कि ओके ideally resistance of the voltmeter should be infinity. क्यों सर? सुनो, आप ध्यान से सुनना मेरी बात. देखो फिर से बताता हूं मैं. यार है, ये करंट है. अभी इस वोल्टमीटर को हमने इधर लगाया और आइडियली क्या होना चाहिए? आरवी का वैल्यू कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए यार? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी क्यों? ताकि इसमें जो करंट आया ना वो घुसे ही ना. अरे भाई इनफाइनाइट करंट मतलब क्या? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब क्या? इट इज लाइक एन ओपन सर्किट. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो करंट यहां से जा रहा है ना, वो करंट पूरा यहां से चला जाए. हेलो, आई यू ऑल गेटिंग इट? इसके अंदर करंट नहीं जाए. क्यों करंट नहीं जाए? अगर करंट चला गया तो वो डाइवर्ट कर देगा करंट को, तो पोटेंशियल डिफरेंस आईआर चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज आई हैज चेंज्ड. एम आई बीइंग एबल टू एक्सप्लेन यू ऑल? Yes, sir. हाँ, द करंट इस वोल्टमीटर में घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि करंट अगर इस वोल्टमीटर में घुस गया तो आईआर चेंज हो जाएगा, बिकॉज आई इज चेंजिंग. तो इसको मांगता है कि करंट वोल्टमीटर में जाए ही ना, और करंट वोल्टमीटर में नहीं जाए इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए. एंड आइडियली इट शुड बी हाउ मच बच्चा? इन्फिनिटी. बट इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है. इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है. कैन आई से इन्फिनिटी के लिए आइडियली व्हाट इज इट गोना मेजर? इट विल मेजर व्हाट? आई इनटू आर. बराबर है. बट प्रैक्टिकली क्या होने वाला है? प्रैक्टिकली क्या होगा? आरवी का वैल्यू इन्फिनिटी तो नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वेरी, क्या होना चाहिए बेटा? Hi. हाई होना चाहिए. प्रैक्टिकली द वैल्यू शुड बी वेरी वेरी हाई. तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग वेरी हाई का वैल्यू से क्या होगा. देखो यहाँ से आई आ रहा है, ये आर है जिसके अक्रॉस मुझे पीडी चाहिए. ये मेरा वोल्ट मीटर है जिसका आरवी बहुत ज्यादा है. मगर आरवी ज्यादा होने की वजह से भी थोड़ा करंट तो घुस जाएगा ना अंदर. हेलो, अरे टेल मी मैन. some current from here will enter, obviously some current from here will enter. तो let the current be IV. तो यहां से कितना करंट जाएगा बेटा? I minus IV. So can I say अभी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना हो गया? भाई are you getting it or not? हेलो. अच्छा, पहले का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है कि अभी का ज्यादा है? पहले V पढ़ रहा था ना, V इज I इंटू R. अभी क्या पढ़ रहा है? V डैश इज I माइनस IV इंटू R. तो इज द वोल्टेज रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड? मेजरिंग वोल्टेज Reduced. रिड्यूस हो गया ना भाई. I रिड्यूस हो गया, R तो वैसे का वैसे ही है. तो कैन आई से V डैश इज लेस देन V? तो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर वोल्टेज में फर्क करेगा. प्रैक्टिकल वोल्टमीटर वोल्टेज में फर्क करेगा. ओके, प्रैक्टिकल एमीटर करंट में फर्क करेगा. गेटिंग इट? अच्छा, इसका एक सॉल्यूशन है सर. फर्क करेगा तो क्या करना पड़ेगा सर? व्हाट टू डू नाउ? देन यू कम टू आवर थियरी क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर. याद है पोटेंशियोमीटर की जितने रीडिंग्स होती है सब नल पॉइंट पे होती है. हेलो, कुछ याद आ रहा है क्या? पोटेंशियोमीटर हमने किया है, जितने भी रीडिंग्स हमने लिया था दैट वाज अ नल पॉइंट. देयरफॉर पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर because potentiometer is very accurate, because जितने भी करंट्स है वहां पर वो सब जीरो है. IG जीरो. याद है? नल पॉइंट पे टच करते हैं. ए मैन, वीडियो देखा है कि नहीं सब लोगों ने? कुछ तो देखना पड़ेगा ना. हाँ, तो प्रैक्टिकली वोल्टमीटर एंड एमीटर आर वेरी हैंडी. पोटेंशियोमीटर बहुत बड़ा होता है, बहुत बल्कि होता है, इसलिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके नहीं जा सकते. इसलिए हम लोग वोल्टमीटर एमीटर यूज करते हैं. बट वोल्टमीटर एमीटर में एरर आएगा, एरर आएगा, एरर आएगा. कितना एरर आएगा वो क्वेश्चन पूछता है जेई में. क्या हाउ मच एरर विल कम, वो हम लोग करेंगे बाद में. ठीक है, तो ये चीज हमको क्लैरिटी आ गई कि भाई प्रैक्टिकली वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी हाई.
अगर उसका कम हुआ तो इट विल डाइवर्ट द वोल्टेज फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। इज दिस पेज क्लियर? इज दिस पेज क्लियर विद यू ऑल? Yes, sir. Okay, fine. So construction of voltmeter by a galvanometer. I'll just come up. Yes, can you all hear me? आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ वोल्ट मीटर बाय गैल्वानोमीटर पे थे। सो वोल्ट मीटर हमको मालूम है क्या? पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई, वेरी हाई। ओके, ओके, तो अभी हमको गैल्वानोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, इसका आरवी होना चाहिए जो ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा करने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस के पैरेलल, सीरीज के पैरेलल सीरीज में लगाना पड़ेगा ना। तो गैल्वानोमीटर को जो है एक सीरीज रेजिस्टेंस साथ में लगाना पड़ेगा, इट शुड बी वेरी हाई। And you know the full scale deflection current in the galvanometer is Ig, and this dabba, this whole dabba becomes what? क्या बन गया यार? ये क्या बन गया? वोल्टमीटर बन गया, सही है क्या? एंड इसको कैसे लगाते हैं हम लोग? इसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं सर्किट के साथ में। मतलब क्या? देखो मैं सिखाता हूँ। मतलब एक सर्किट है ये वाला, और ये हमारा रेजिस्टेंस है एक्स, जिसके अक्रॉस मुझे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल मांगता है। तो ये वोल्टमीटर लगाना है इधर, ये डब्बा वोल्टमीटर का। और ये वोल्टमीटर के अंदर क्या होना चाहिए? गैल्वानोमीटर होना चाहिए, उसके साथ में सीरीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? हेलो हेलो, yes or no? You listening or not? Yes, sir. हाँ, आदित्य पंडित, are you there? Yes, sir. Okay, so ये चीज है। तो कैन आई से यहाँ से देखो, अभी क्या होगा? लुक ओवर हियर, यहाँ से करंट जा रहा है आई, एंड वी आर डिजाइनिंग फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ओनली है। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा गैल्वानोमीटर में? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की बात कर रहा हूँ मैं, आईजी। तो यहाँ पर कितना जाने वाला है? हेलो, I minus IG. आई माइनस आई जी। कैन आई से आई जी इसके अक्रॉस जाएगा ऐसे। ओके, galvanometer is going to read what? This voltage na. Gautav, how much is that voltage बच्चा? जो galvanometer read करेगा voltage कितना है? जल्दी बोलो। I minus IG into X. Or it could also be written as, ये voltage और ये voltage भी same है ना? Can I write this will become IG into G plus R? हेलो, Yes, sir. अरे यार ऊपर नीचे का वोल्टेज सेम रहेगा ना, दोनों पैरेलल में है ना। वीडियोस तो ऑन करो बेटा, फिर से। यस प्लीज।
Yes, sir. Jinay, Jaydeep, Anand, okay. Divya, come on, fast, please. Sahil Jain, off only, man. Fine, ध्यान दो इधर. So this, we'll take this, huh? We'll take this value. सबको समझा ना, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम है बिकॉज दोनों पैरेलल में है. ये वोल्टेज कितना रहेगा इसके अक्रॉस? ये वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बिकम आई जी इंटू जी प्लस आर. Can I say voltage which he is going to measure is Ig into G plus R? Can I write this as V upon Ig is equal to G plus R? So R का वैल्यू कितना रहेगा? V upon Ig minus G. Can I say this resistance has to be connected in series with galvanometer to convert to voltmeter? Yes or no? Okay, this resistance has to be connected in series with the galvanometer to convert it into a voltmeter. ये याद रखना. अच्छा, can anyone tell me what is the resistance of the voltmeter? ये पूरा डब्बे के अंदर कितना रेजिस्टेंस है? हेलो, G plus R? Yes, sir. It should be high, huh? Who's high? This is very high. R is very high. G तो G है ना? R should be very high and shunt should be very low. Always remember this concept that shunt should be very low and R should be very high. ठीक है? तो ये दोनों चीज है जो हम लोगों को पढ़ना है. हम लोगों को पढ़ना है. बाकी सब कुछ मैंने पूरा थियरी गैल्वानोमीटर एमीटर का कंप्लीट कर दिया है. इसके सम्स हम लोग फ्राइडे को करेंगे. नाउ आई एम कमिंग टू अनदर मीटर व्हिच इज पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर I'll speak about it as minimum because we have done this in the videos. Okay, all the videos of current electricity potentiometer में पूरा derivation के साथ में हमने किया है. It is a request to everyone that Friday को आपको पढ़ के आना है potentiometer, Wheatstone's meter bridge, potentiometer सब कुछ पढ़ के आना है, so that I can do the sums very comfortably. And Monday से we can start with our level 1 objective and subjective. So Monday, Wednesday and Friday I'll be finishing the objective and subjective level 1. Okay, fine. So listen over here. I'll start with Wheatstone's network. Remember, this was R1, R2, R4 and R3, and there was a galvanometer over here. This was connected to a battery and a key. हेलो, याद आ रहा है? वो याद है सब लोगों को? This to yes or no? Correct है Yes. ना? Yeah. Remember the current was going I. Current which was going was I. यहाँ से I split हो जाएगा. ये हो जाएगा I1. ये हो जाएगा I2. ये हो जाएगा IG. ये हो जाएगा I1 minus IG. और ये हो जाएगा I2 plus IG. And you know as incoming is outgoing, यहाँ पर I का I ही निकलेगा. Yes or no? वही वीडियो देखो हाँ करंट का प्लीज. अच्छा ठीक है. पूरा ऑपरेशन मैंने क्या किया था? मैंने इधर किरचॉफ्स लॉ लगाया, मैंने इधर किरचॉफ्स लॉ लगाया. अच्छा, इसको नाम भी दे देते हैं इस पॉइंट्स को, ABCD.
Can you tell me when is this Wheatstone network said to be balanced? भाई कुछ आंसर दो, हाँ अभी ये इंपॉर्टेंट है यार. बैलेंस Wheatstone नेटवर्क कब होता है? Well, haven't seen. Please tell me. IG is 0. Okay, when IG is 0. When will IG be 0? और कुछ? When R1, R2 is R3, R4. No, वो तो एंड का रिजल्ट है बच्चों. When the सही है. voltage across B and D is the same. ये वोल्टेज और ये पोटेंशियल सेम है ना. हेलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी. करंट को लाइटली मत है ना, वरना खराब हो जाएगा सब कुछ. पूरा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म सब खराब हो जाएगा. जितना भी वीडियोस आई एम सेंडिंग एकदम मिनिमम वीडियोस ओनली. बेटा मैक्सिमम के लिए आई हैव एन नंबर ऑफ वीडियोस टू सेंड. बट जितना दे रहा हूं उतना तो देखना पड़ेगा. नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना. फ्राइडे को मुझे चाहिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी. अच्छा, साहिल हैज टोल्ड मी द एंड रिजल्ट. तो इसका रिजल्ट क्या आता था बेटा व्हेन यू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ? साहिल, इसका रिजल्ट क्या आया था? एंड रिजल्ट क्या था? R1, R2 is equal to R3 into R4. R1 upon R2, left upon right. Was left upon right? Do you remember this thing? Hello? Yes. This was the result of this. Or I can say it is vice versa. It is vice versa. अगर ऐसे होगा तो ऐसे होगा, या ऐसे होगा ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला, नीचे वाला होगा तो ऊपर वाला. Yes or no sir? Correct है ना? ये हम लोग यूज करने वाले हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको. Operations were done in your theory questions. Theory chat, send you the videos. Yes sir. ये है Wheatstone's नेटवर्क के बारे में. This is again important. Now we come to other concept, that is Wheatstone's meter bridge. Wheatstone's meter bridge, please be with me man. Okay, फुल एनर्जी के साथ में बैठना है यार आप लोग को. 1 hour 15 minutes का लेक्चर है, उसमें भी come on. Now I am doing Wheatstone's meter bridge. अभी इधर ध्यान देना सब लोग. अभी Wheatstone meter bridge में क्या था? There was a wire whose length was 1 meter, AB. Remember there were L-shaped copper strips. Hello? अरे भाई बोलो. Yes, sir. Remember between the L-shaped copper strip there was a क्या था? Straight strip. Forming how many gaps? 2 gaps. 2. In one gap there was a unknown resistance X. In the other gap there was a known resistance R. याद आ रहा है क्या? Yes or no? Yes. And they all were connected to क्या भाई? Cell, key and the rheostat. बराबर है ना? Yes, sir. यार कुछ तो हाँ बोलना है. सही है. Yeah. And this point D was connected to a galvanometer through a jockey which was untouched. ना एक्सपेरिमेंट में आपको वीडियो देखना है. एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? जॉकी को आपको घुमाना है, की को प्रेस करना है, करंट फ्लो होगा, देन डिफ्लेक्शन देखना है, एंड आपको जॉकी को घुमाना है एंड place the jockey and tap the jockey till at a certain point D is obtained. At point D, what will happen? The galvanometer will show क्या यार? Zero No deflection. deflection. If the galvanometer shows no deflection, means I can say left upon right is left upon right.
तो लेफ्ट अपॉन राइट, यहाँ का रेजिस्टेंस पकड़ लो आर एक्स, एक्स के सामने वाला आर एक्स, इस वायर का रेजिस्टेंस आर एक्स पकड़ लो, एंड इस वायर का रेजिस्टेंस पकड़ लो आर आर. So if you remember, x upon r was rx by rr. That is x upon r is, r को लिख सकते हैं रो l by a, रो lx by a, and this is रो lr by a. रो by a कैंसिल हो गया because wire is uniform. तो x upon r क्या रहेगा? lx upon क्या भाई? lr. But lr, you know, this whole thing is 100 centimeters long ना. तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ? हेलो. Yes, sir. Because total is, तो LR will be 100 minus LX ना. ये है, ये चीज हमने थियरी में पढ़ी है एवरीवन. ओके, अभी देयर इज अ कंसेप्ट ओवर हियर, पे अटेंशन टू दिस कंसेप्ट, इज न्यू कंसेप्ट. इसको कहते हैं एंड करेक्शन. भाई इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, सब लोग इधर ध्यान दो. ओके, देखो इसका थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक. आई विल चेंज द नेम. इसको नाम दिया है R1, इसको नाम दिया R2, इसको नाम दिया L1, इसको नाम दिया L2. ठीक है. नाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस, सो आई हैव रब दिस. इसका काम नहीं है बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर से. ये मैं रब कर रहा हूँ. मैं आ रहा हूँ एंड करेक्शंस की तरफ. एंड करेक्शंस क्या होते हैं? एंड करेक्शंस, इसका मतलब ये होता है कि जो ये कॉपर स्ट्रिप है ना, ये वाला जो स्ट्रिप है ना बेटा, सॉरी, ये वाला जो कॉपर स्ट्रिप है ना, तो इस कॉपर स्ट्रिप के पास भी तो रेजिस्टेंस होगा. हेलो, होगा कि नहीं होगा? तो आप सिर्फ यहाँ पे आर एक्स क्यों पकड़ रहे हो, ये R1 क्यों पकड़ रहे हो सामने वाला? आपको इसका भी रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा ना कंसिडरेशन में. यस और नो? हेलो, यू कैन नॉट ओनली कंसिडर दिस वायर. ये वायर के साथ ये भी तो जुड़ा हुआ है यहाँ तक. तो इसका रेजिस्टेंस पकड़ लो अल्फा, और इसका बैलेंसिंग लेंथ पकड़ लो अल्फा, एंड इसका बैलेंसिंग लेंथ पकड़ लो बीटा. So can I make a simplified diagram? Look over here. Now I'm making a simplified diagram over here. Let the resistance over here be R1, R2. And उसके सामने का लेंथ कितना है? ये L1 प्लस अल्फा. And ये क्या है? Are you getting it? हेलो Yes, sir. भाई, कुछ भी नहीं है. R1 R2 के सामने L1 प्लस अल्फा. इसका बैलेंसिंग लेंथ, इसका लेंथ जो है रेजिस्टेंस के मुकाबले अल्फा है, एंड इसका जो लेंथ है रेजिस्टेंस के लिए, दैट इज बीटा. बिकॉज R is rho L by A ना. So R is proportional to alpha over here, this side, and that side is proportional to beta. So if I apply left upon right is left upon right over here, listen to me. Can I write R1 upon R2 will become L1 plus alpha upon L2 plus beta? हेलो 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 बोलो भाई, करेक्ट है क्या? अच्छा, can I write this also as R1 by R2 is L1 plus alpha, and L2 को लिख सकते हैं बेटा 100 minus L1 plus beta. हेलो बोलो. हे भाई, सही तो है. What is L2? L2 is 100 minus L1. अल्फा बीटा तो वैसे क्या वैसे ही रहेगा ना, वायर के साथ तो 100 लेंथ ही है ना.
अब इन्होंने क्या किया, एंड करेक्शन पहचानने के लिए, अल्फा बीटा पहचानने के लिए इन्होंने दोनों को स्वैप कर दिया, मतलब R1 की जगह R2 एंड R2 की जगह R1, मतलब ये ऐसे बना दिया। चलो अभी बोलो ये साइड कितना हो जाएगा और ये साइड कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो क्या हो गया। हेलो हेलो, R2 का बैलेंसिंग लेंथ कितना था, R2 का बैलेंसिंग लेंथ कितना था, L2 plus बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा L2 प्लस अल्फा ही हो जाएगा ना। अरे अल्फा था ना बेटा, ये तो अल्फा ही था ना, ये थोड़ी चेंज होगा। हेलो, Yes sir. एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 plus beta. L1 प्लस बीटा, ये बीटा हो गया। तो फिर से इक्वेशन बनेगा R2 by R1 is L2 plus alpha upon L1 plus beta, which could also be written as L2 plus alpha, L1 को लिख सकते हैं 100 minus L2 plus beta। हेलो भाई बोलो, अरे नथिंग मैन, अल्फा बीटा से खेल रहे हैं हम लोग, यस और नो। हेलो, Yes, sir. नाउ इसका रिजल्ट मैं आपको दे देता हूँ, अल्फा जो आएगा दैट विल कम R2 L1 minus R1 L2 अपॉन R1 minus R2, ये आपको याद रखना है सीधा। अल्फा इज द लेंथ ऑफ द corresponding to resistance of the left hand of the copper strip। बीटा क्या रहेगा, बीटा बीटा वैसे ही निकाला हमने, will be R1 L1 minus R2 L2 अपॉन R1 minus R2 minus 100। ये दोनों चीज लर्न बाय हार्ट कर लेना, प्रूव करने का टाइम तो रहेगा नहीं आपके पास। I have explained the whole concept on the basis of this kind of sum which is there of end corrections comes in the examination, huh? So you have to learn the formula only, proof करने का टाइम आपके पास रहेगा नहीं। Okay, ये चीज याद रखना भाई प्लीज। Now we come to, this is also over, now we come to sums based on potentiometer। Potentiometer concept I'll give it to you, and जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्लीज वीडियो देख लेना। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, पोटेंशियोमीटर के सम्स आते ही है कंपल्सरीली, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब एवरी सेकेंड जेई पेपर के अंदर पोटेंशियोमीटर का सम होता है। और पोटेंशियोमीटर का सम इतना आसान है कि उसको स्टेप्स से ही कर सकते हैं। दैट स्टेप्स आई एम गिविंग इट टू यू राइट नाउ, उसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, पोटेंशियोमीटर करता क्या है आपको मालूम रहेगा। पोटेंशियोमीटर क्या करता है भाई, ओके, टू कंपेयर EMF of the cell, measure internal resistance of the cell। पता रहेगा ना सब लोगों को। हेलो यार, हम लोगों ने वीडियो बताया है पूरा। ओके, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। that the potential difference across any two points on the wire is directly proportional to its, क्या यार बोलो ना, corresponding, yes sir, लेंथ किया है ना हम लोगों ने। रिकॉर्डिंग देखना यार और आसान है इसका, rather than I explaining over here। वो थियरी का रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आप लोग को। सो हमको मालूम है कि एक पोटेंशियोमीटर है, the cell
key and a rheostat. ये सेल और एक की है. Point is A. This point is B on the wire. Correct है ना? अच्छा, suppose if I listen to me, now if I tell you क्या होगा? Suppose ये 10 वोल्ट है. सब मैंने बताया है यार. इसको 0 पकड़ो और इसको 10 पकड़ो. ये 10 रहेगा ना, ये भी तो 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. तो जैसे हम वायर के अक्रॉस ट्रैवल करेंगे ना बेटा इस डायरेक्शन में, आपको मालूम है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है ना. पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं? यहाँ पर आ गया 8 वोल्ट, यहाँ पर हो गया सपोज 6 वोल्ट, यहाँ पर हो गया 4 वोल्ट. बराबर है क्या? 2 वोल्ट. हेलो. Yes, sir. There is potential gradient as you travel across the length of the wire. There is potential gradient. मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊँ ना, ऐसे आएगा ना यार. हेलो. एंड इस जो स्लोप है इसको बोलते हैं पीजी, पोटेंशियल ग्रेडियंट. दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, y by x ना स्लोप. बाबा हेलो. Yes, sir. ये प्रिंसिपल पे ये काम करता है. पीजी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. पीजी इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर, एंड इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर, फॉर अ गिवन सेल, इट इज कांस्टेंट. ठीक है, तो ये उसका प्रिंसिपल है जो हमको ध्यान रखना है. अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. So, यस सर. so I have a doubt in potential gradient. टेल मी बेटा. So, but as you increase the length, isn't the potential difference actually increasing? Potential is decreasing. Potential is decreasing. Listen to me. You are also correct. I am also correct. Purav, Yes, sir. potential is decreasing. Yes, sir. Potential difference is increasing. बराबर है आपकी बात. So potential gradient is for potential, right? Yeah, it is for potential. It is for potential. Okay, sir. Thank you. Okay. But if I calculate this also, it will be potential difference ना. Slope अगर निकालना है बेटा, तो it will be v minus 0 upon l minus 0 ना. Hello. That will give you v by l only ना. Hello. Yes, sir. Okay. इसका मतलब क्या होता है मालूम है पूरा? और थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में मैं आपको बताने जाऊँ तो इफ आई कंसिडर सपोज 1 2 3 4 5 मीटर, सपोज ये 5 मीटर है, तो पूरा मुझे आप बताओ कि पर मीटर कितना गिरावट हुआ? पर मीटर कितना गिरावट हुआ? 2. 2. So that is PG. Did you get it now? Yes, sir. Then can I say the potential gradient is 2 volt per meter? Getting it now? So, but as you increase it, like from if you go 1 meter, it's 2. Then from 2 meters, the decrease is 4. No, no, So, no, 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 no. It is potential difference per unit length. बाबा देखो, ये 1 meter है. Hello. yes, sir. How much is the difference? 2. ये भी 1 meter है. How much is the difference? 2. ये भी 1 meter है. Now you got? No. So the slope is constant. So, but the slope is potential difference, right? Slope is potential difference per unit length. We are taking the length also into consideration. Hello. Understood, sir. Okay. So ध्यान रखो बेटा. कुछ भी डाउट हो इसमें पूछ लो, कोई टेंशन नहीं. ये इसका ये चीज है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. लास्ट पार्ट विच आई वांट टू डिस्कस इज स्टेप्स. ध्यान से हाँ बेटा. स्टेप्स टू सॉल्व
पोटेंशियोमीटर सम्स, हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूँ जितने भी सम्स है, चाहे एडवांस, जेई मेन, नीट, सीटी, ये स्टेप्स अप्लाई किया कोई भी सम आएगा, बस सीधा सीधा स्टेप्स अप्लाई करो, कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व किया है, मैं स्टेप्स आपको दे देता हूँ। सबसे पहले we will calculate sigma, which is resistance per unit length of the wire, r wire upon length wire, इसका यूनिट रहेगा ओम पर मीटर। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके सम्स करेंगे, इसको पक्का कर लेना है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्लीज 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 वीडियो देखो, वरना यार सब खराब हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं आएगा, आगे का कुछ भी नहीं आएगा, फिर वीडियो देखना पड़ेगा आप लोग को। सेकेंड, करंट is E upon R plus X plus R. So E, this is R wire, this stands for external resistance, and this stands for internal resistance. कितना करंट फ्लो हो रहा है वायर में ये तो बताइए ना, E अपॉन R प्लस X प्लस R, X इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आपने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, इधर सपोज यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो करंट तो चेंज हो जाएगा ना भाई, हेलो। तो वही करंट की बात यहाँ पर कर रहा हूँ ना मैं। थर्ड स्टेप, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज सिग्मा इनटू आई। इसका यूनिट तो पता ही है, एम्पियर होता है, इसका यूनिट रहेगा वोल्ट पर मीटर। सिग्मा ऊपर से फाइंड किया, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पीजी मिलेगा, पीजी इज सिग्मा आई। फोर्थ स्टेप, E1 is PGL1. What is E1? इसको बोलते हैं बैलेंसिंग EMF, एंड इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। You must have seen in the videos balancing length, balancing EMF. Similarly E2 दूसरा सेल लगाया तो PGL2 हो जाएगा। E1 is PGL1, E2 is PGL2, balancing EMF give rise to balancing length, because ये प्रिंसिपल है ना, potential difference across any two points on the wire is proportional to its corresponding length, and if I divide both of them, E1 upon E2 क्या हो जाएगा, L1 by L2। Sixth step, suppose batteries are connected in series, batteries are connected in series, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 plus E2 in the same fashion was PGL1। तो यहाँ पर एक alone E1 and E2 was there, यहाँ पर दोनों batteries were connected in the same fashion, or I can say they use the word they are assisting each other, and इसका balancing length इस moment पे L1 है। वैसे ही suppose if they oppose each other, ये हो जाएगा PGL2, यहाँ पर बोलेगा they are in opposing fashion, opposite fashion। ठीक है, ये सब वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्लैरिटी से। 7th पॉइंट, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा E1 plus E2 अपॉन E1 minus E2 will become L1 plus L1 upon L2, ये दोनों को डिवाइड कर दिया। बट डिवाइड करने के बाद में इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करो, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा, L1 plus L2 अपॉन L1 minus L2। आर यू गेटिंग इट? हेलो, इस मेथड को नाम दिया जाता है सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड। Okay, so these were all the steps to solve potentiometer sums. One more step is there to find internal resistance. जब भी internal resistance find करना है, formula is छोटा r is equal to r L1 by L2 minus 1. What is r? छोटा r is internal resistance, capital R is shunt resistance. L1 is the length before shunting, balancing length before shunting. And this is balancing length after shunting. Okay.
सो एनी सम यू पिक अप, बट ये चीज तो आना चाहिए ना भाई, कौन से टर्म्स है, किधर क्या यूज करना है, वो तो आपको पता होना चाहिए, वरना शॉर्टकट वॉर्टकट आने से कुछ मतलब नहीं है। तो this completes your whole synopsis of current electricity. Now it is a request to you all that अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियोस देख लो। फ्राइडे को मिलेंगे हम लोग। फ्राइडे को we'll be solving the sums based on potentiometer, Wheatstone's network, and Monday से we'll be starting with level 1 objective, and 3 दिन में Monday, Wednesday, Friday में objective and subjective खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में I'll be starting with electrostatics। ठीक है, तो इस चीज को नोट करो। चलो, टेक केयर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, बाय। अच्छा, एडवांस पीपल प्लीज वेट फॉर 2 minutes, रेस्ट ऑल कैन लीव। Thank you, sir. Bye, sir. Advance, yeah, thank you beta, advanced students can just wait for 2 minutes। ओके बेटा, अभी मुझे आप लोग बताओ कि भाई आपको सुबह का लेक्चर ठीक लगेगा कि दोपहर का लेक्चर ठीक लगेगा? I'll arrange accordingly then। So morning is fine. 8:30 is okay ना यार? इतना So evening. So इवनिंग में sir. क्या है, सचिन सर भी रहेगा ना आप लोग का, बैक टू बैक। तो मॉर्निंग 8:30 आई थिंक आई विल स्लीप सो मच मैन। हाउ मच डू यू ऑल स्लीप मैन? हैं, क्या बोलते हो? इट्स ओके। Yes, sir. Morning is fine. 8:30 to 9:45 ना? हेलो, Yes, sir. I'll start with gravitation tomorrow, so 8:30 is okay, I think so। 8:30 रखते हैं हम लोग एवरी टाइम के लिए, and then 8:30 to 10 या 8:30 to 9:45 I'll be starting gravitation tomorrow। ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक So, केयर। sir, what about the Saturday test timing? Because Sachin sir has class now from 5 to 6:30. हाँ, तो वो चेंज कर देते हैं, मैं ग्रुप पे मीटिंग करता हूँ उन लोगों से और चेंज कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सुबह में रख लेंगे ना? हेलो, Okay, sir. या संडे को कर लेंगे? संडे इज बेटर ना? No, sir, Sunday there are lots of classes. लॉट ऑफ क्लासेस आते हैं। ठीक है, सैटरडे को सुबह में कर लेंगे, मैं बात कर लेता हूँ उन लोग से। ठीक है, Okay, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. थैंक यू ऑल। Bye, sir.